Inaugural session of Botanical Society Nergis for the academic session 2022-23. The chief guest of the event is Dr. Mohammad Aslam Parvez. Thank you, sir, for sparing your valuable time with us. Now we begin our program by paying a tribute to Ma Saraswati with lamp lighting followed by Saraswati Vandana. I invite our chief guest, Dr. Parvez and Dr. Ratna ma'am to kindly kindle the lamp. Thank you, sir. We can invite our teachers also. Yes, other faculty members, please join us. Bhavika ma'am, Chalasso ma'am, Savinder sir, Ruchi ma'am, Deepika ma'am, please join for the lamp lighting. आगे आ जाइए। अपना पोजीशन रखें। भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय भागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय भागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। सा नि रे सा, सा नि ध नि ध वा, पा म ध पा, पा म ग म ग रे ग रे सा। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, धन्या। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या, सुरमुनि वन्दित चरणा। नवरस मधुरा कविता मुखरा, नवरस मधुरा कविता मुखरा। स्मिति रुचि रुचिरा भरना। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः। प्रणमामः, प्रणमामः, प्रणमामः। धन्यवाद। Can you please translate it? Everybody can translate it. No? This Vandana was recited by Lavanya, Nakul and Preeti, students of first and third year students of Botany College.
After this heavenly blessings, I request Dr. Ratna ma'am to kindly facilitate our chief guest, Dr. Parvez, with a potted plant. Very good morning. All of you. Can manage if these students can find a seat? Some of you can come here. कुछ इधर आ जाइए. और जो खड़े हैं एटलीस्ट बैग को उतार दीजिए, लग रहा था अभी आप भाग के जा रहे हैं. आप जाने नहीं है आप. Relax yourself. लोगों के पीछे चेयर पे कोई बैठा तो नहीं है जिसे आप लॉक कर रहे हो? अगर ऐसा वरना कॉर्नर्स ले लीजिए. वही प्रैक्टिस अब भी होगी आई थिंक, बिकॉज वहीं पे आपको ग्रीनरी मिलती है. सो व्हेनेवर यू गो देयर, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शेयर. नाउ सम ऑफ द लेसन्स व्हिच आई हैव लर्नड. Yeah, okay. No confrontation. This is what I learned. That, and I will show it. You must have seen these things. This is a dug up plant with roots. Now these roots and root hairs, you will never find them straight except the tap root. Why they are zigzag like this? The reason is shown in this picture. A young root hair, when it travels the soil, it comes across various soil particles. ये उससे अमिताभ बच्चन की तरह ऐड करी हुए सामने से हट मेरे को जाना है. Intelligent root finds a way around the soil particle and moves. जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हैं. No confrontation of this particle, it bends. Again no confrontation, it bends. So lot of bends you find in root hairs because they are avoiding confrontation. They have a purpose of life. कि मुझे वाटर तक जाना है, वाटर एब्जॉर्ब करना है. ये रास्ते की जो रुकावट है इनसे मुझे भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है. I have to find out a way and do my assignment. So no confrontation, because whenever you develop a confrontation, you waste your time, your energy, your mental peace. Find out a way to avoid it. So avoid all those situations where confrontations are likely to develop. Leave it. Don't listen to your ego. दोस्त कहेंगे वही तू चलाया वहां से, वो तेरे हाथ पर नहीं थे. और भी एक जुमला कहते हैं जो मैं कहूँगा नहीं, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इट. हाँ वही कहेंगे लॉटरी बन गया, औरत बन गया, हाथ नहीं चलते. आई डोंट बिलीव इन इट. So this is one lesson which I have learned and I have followed. क्लास सेशन. मुश्किल काम है ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन प्लांट्स में जिनकी पर्सनैलिटीज नहीं है, इमोशंस नहीं है, द वे वी हैव, उसको भी जब ट्रांसप्लांट करते हैं तो कितना ध्यान रखते हैं. सपोर्ट लगाते हैं चारों तरफ, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखते हैं तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहे टिल इट फाइंड्स इट्स प्लेस एंड डेवलप इट्स रूट्स. स्ट्रेंथन कर ले अपने आप को, जमीन को पहचान ले और जड़ें मजबूत कर ले. ह्यूमन सोसाइटी में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है. जब लड़की की शादी होती है, एक घर से दूसरे घर जा रही है. अब दूसरे घर वाले क्या ये समझ रहे हैं कि इसकी कितनी केयर करनी है? हाउ मेनी ऑफ अस थिंक ऑन दिस लाइन्स? अनफॉर्चुनेटली नॉट मेनी. यहाँ हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ ट्रीज, इनकी कोई पर्सनैलिटीज नहीं
नहीं है, जिनकी कोई चॉइसेस नहीं है, जिनकी इंडिविजुअलिटी नहीं है। हमको ये समझना चाहिए कि जब हम किसी लड़की को अपने घर में या अपनी लाइफ में लेके आ रहे हैं तो उसको प्रॉपर टाइम और स्पेस मिलना चाहिए टिल शी फाइंड्स हर रूट्स। उस टाइम तक उसके पीछे नंद भावजों को, देवरानी जेठानी को नहीं लगना चाहिए, सासू माँ को नहीं लगना चाहिए। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट लेसन वी गेट, और ये समाज का, हमारे सोसाइटी का एक बहुत बड़ा इशू है। तो रिमेंबर, इसको आप लोगों को भी याद रखना है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो बहू आती है वो भी एक औरत होती है, जो सास होती है वो भी एक औरत होती है, और वो भी किसी टाइम में बहू थी। लेकिन हम अपना टाइम, हाँ फिल्म भी आई थी सास भी कभी बहू थी, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ये नेचर से भी हमें सबक मिलता है, और उसकी बहुत सारी साइंटिफिक रीजंस और भी हैं। इस पर टाइम कम है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा डिटेल में। आई थिंक यू विल कैच अप फ्रॉम वेयर आई एम लिविंग that why this is important. But this is a quote, nature is just enough, but men and women must comprehend and accept her suggestions. This is Antoinette Brown Blackwell. ये बड़ी इंटरेस्टिंग लेडी थी 19th सेंचुरी की, जो USA में फर्स्ट मिनिस्टर बनी थी और वीमेन एक्टिविस्ट थी। हाउ रेलेवेंट स्टिल फॉर टुडे दैट नेचर इज जस्ट एनफ, जिसको हम ये भी कहते हैं कि नेचर हील्स इटसेल्फ। आप उसको उसी में छोड़ दो। लेकिन यहाँ हमें भी सीख लेने के लिए वो कह रही है कि बट द मैन एंड वीमेन मस्ट कॉम्प्रीहेंड एंड एक्सेप्ट हर सजेशंस। अब ये सब नेचर के तो सजेशंस थे जो मैंने आपको बताया, नो कन्फ्रंटेशन, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, और ये थोड़े से बताए मैंने, बहुत है। मैंने ज़िंदगी में जितने प्लांट से सीखे और नेचर से सीखे, ये पूरा धर्म है मेरा। मैं अपने आप को नेचुरलिस्ट कह सकता हूँ। नेचुरलिज्म या ह्यूमैनिज्म है मेरा धर्म, क्योंकि मैंने इससे इतना को सीखा है कि और कुछ चीज़ नहीं हो, बल्कि मैं अपने डिवाइन स्ट्रक्चर में भी यही चीज़ें पाता हूँ। आई डोंट फाइंड एनी कंट्रास्ट। सो दैट वे मैं पूरा धार्मिक भी हूँ, साइंटिस्ट भी हूँ, एंड आई सी नो कंट्रास्ट एंड नो कन्फ्रंटेशन। और इस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए मैंने कोई बाईपास नहीं निकाला। प्लीज रियली नो कन्फ्रंटेशन जोन। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। अगर प्रेसिडेंट साहब इजाज़त दें तो कोई क्वेश्चंस है अगर किसी के, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। No, interaction is absolutely a must with you. I wish you would have extended it. Everybody, I think, was enjoying it. आई नो, लेकिन मैं इतना बर्डन भी नहीं जानूंगा कि फिर मुझे अच्छा ना लगे, कुछ लोग लगे कि जा रहे हैं फिजिकली या मेंटली जा रहे हैं। अभी जितने लोगों को मैं देख सकता था वो मेंटली प्रेजेंट थे, थोड़े से कुछ लोग थके थे, मेंटली फेवर्ड हो रहे थे, लेकिन बाय एंड लार्ज देवर दिया। वो साइड तो मुझे नहीं दिख रही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो सामने थे उनको मैं देख रहा था। एनीवे, सो बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। एक सवाल जो आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट, कि आपने सिर्फ फीमेल्स को क्यों टारगेट किया जब लड़की की शादी हुई? उसके रीज़न है कि इसको आप माने या ना माने कि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटीज़ में फीमेल सफ़र करती हैं, आज भी करती हैं। कहीं सचमुच करती हैं, कहीं उनको बेवकूफ़ बना के सफ़र कराया जाता है। नहीं, मेरा मतलब है कि नंद और या जेठानी और यही करती हैं, देवर और नहीं, फादर-इन-लॉ का कोई रोल नहीं। देखिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में जितना एक्सपीरियंस किया है उसमें कन्फ्रंटेशंस, रीज़न मुझे नहीं पता कि वाई क्रोमोसोम के हैं किसके, वो फीमेल्स में ही होते हैं। अच्छा, ये भी हो सकता है कि शार्पनेस और श्रूडनेस और कनिंगनेस मेल्स में ज़्यादा होती है, तो वो अपनी वाइफ्स के थ्रू एक्ट करते हो कि जेठ जी जेठानी को आगे करते हो, खुद पीछे रहते हो। बट दैट्स हाउ वी फाइंड इट हैपनिंग। ऑफ कोर्स 100% ये रूल्स ऐसे नहीं हैं, कहीं कहीं पे बहुत बुरे देवर जेठ और ससुर भी होते हैं, लेकिन दैट्स एन एक्सेप्शन नॉट अ रूल, जो हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी है। मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जब आप कह रहे थे कि शेयर योर नोट्स, तो कुछ बच्चों ने मुझे देखा और मुझे देखा मान क्या मतलब आपके फिर शायद सर और मेरे से ज़्यादा बेहतर बताएंगे। आई नेवर सेड कि डू नॉट शेयर योर नोट्स,
आई मीन टू से शेयर योर नॉलेज एक्चुअली। स्टूडेंट्स क्या करते हैं नाउअडेज, दे हैव फोन, दे जस्ट क्लिक द फोटोग्राफ, एक डायग्राम सही हो गया, दे जस्ट पास इट टू द क्लास। मेरा ये कहना है दोस्ती वहाँ निभाएं, अपने दोस्त को साथ बैठ के काम कराएं। वो शेयरिंग ऑफ नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट रेदर देन जस्ट पास योर नोट्स टू योर क्लासमेट्स। और एक बाई चांस हमसे ही कोई करेक्शन रह जाती है तो द सेम रॉन्ग स्पेलिंग और मिस्टेक के पास टू द होल क्लास। तो स्पेशली हमारा किसी भी स्टूडेंट के लिए ये इंटेंशन नहीं होता है कि यू डू नॉट शेयर, बट शेयर द करेक्ट नॉलेज और अपने फ्रेंड को साथ लेके चले। आई थिंक सर मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि दोस्ती का सही मतलब होता है कि उसको भी अगर किसी उसने क्लास अटेंड नहीं करी है या किसी और वजह से उसको साथ लेके चले, उसको बोलिए आइए मैं आपका काम कंप्लीट करा दूँ रेदर देन जस्ट सेंडिंग दी फोटो। देखिए मैंने जब नोट शेयरिंग की बात कही थी तो उसके आगे जो कहा था वो भी सबने सुन लिया। देखिए एक बात का ध्यान नहीं, इसमें मैं 2 पॉइंट्स इस वक्त कहूँगा। एक बात का ध्यान रखिए कि आप कितनी परसेंटेज से क्या पोजीशन लेके पास हो रहे हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज व्हाट यू नो। अब तो देखिए हर स्टेज पे एंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं, आपके मार्क्स जो आप स्कोर कर रहे हैं चाहे स्कूल में या कॉलेज में, दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं अपनी जो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का मेरा एक्सपीरियंस है विच इज़ मोर देन 15 ईयर्स एज ए प्रिंसिपल, एज ए वाइस चांसलर, जितनी मैंने सिलेक्शन कमिटीज़ की हैं, हंड्रेड्स आई हैव कंडक्टेड फॉर टीचर्स अपॉइंटमेंट, उसमें हमारा फोकस नॉट ओनली मी बट ऑल दी एक्सपर्ट्स विच वर विद मी, वो नॉलेज कंटेंट है। तो आपका परसेंटेज कुछ भी अगर आपको सब्जेक्ट नहीं आता, एक बात और बताऊं कि सब्जेक्ट अगर आपको नहीं आता ना, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस विद योरसेल्फ, और आप बेईमानी के साथ ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जी सकते। इट विल पिंच यू, इट विल हिट यू बैक सम टाइम इन योर लाइफ। सो बी फेथफुल, चाहे रिश्ते हों, चाहे प्रोफेशंस हों, चाहे एकेडमिक्स हो, वन मस्ट बी फेथफुल। पढ़ना है तो पढ़ना, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। मुझे नहीं पढ़नी बॉटनी, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़नी है। बागी हो जाइए, बगावत कर दीजिए, डोंट लिसन टू योर पेरेंट्स कि मुझे नहीं पढ़ना है या नहीं पढ़ना। बट जब पढ़ना है तो जस्टिस करना है। दूसरे आपसे अब एक नाराजगी है कि आप इतनी लीजिएंट टीचर क्यों हैं? जहाँ जहाँ कॉपी पे कॉपी दिखती है उसको फाड़ के क्यों नहीं फेंका? जी सर, मैं सबसे नहीं देखिए, आई रिमेम्बर माई टीचर, प्रैक्टिकल फाइल पूरी ऐसे फाड़ी जाती थी और फेंकी जाती थी खिड़की से बाहर, और कल पूरा चाहिए मुझे ठीक, रात भर बैठ के ड्राइंग करो, कुछ करो। Be like that, वरना तो फिर बॉटनी will lose its edge। I hope you know doctor। आता था प्रैक्टिकल फाइल्स हर बैच की इकट्ठी करके रखता था और जलवा देता था कि एक से दूसरे को पास। ये हेडेक होता था, वो फड़वाते थे हम लैब असिस्टेंट से, उसके बाद ग्राउंड में रखवा के आग लगा देते। पास ऑन नहीं होनी चाहिए। राइट योर ओन एक्सपेरिमेंट्स कि मैंने कैसे किया है, फिजियोलॉजी कर रहे हैं तो कैसे करिए, क्या किया। तो उसमें मेहनत हमें भी पड़ती है, अदरवाइज यू विल नेवर लर्न एनीथिंग। अगर आप दूसरे से कर रहे हैं तो यू आर किलिंग योरसेल्फ। आपके बिहाफ पे वो आपके लिए कल को इंटरव्यू में थोड़ी जाएगा, वो आपको रोटी थोड़ी खिलाएगा, और सबसे बड़ा वो आपको वो सेल्फ एस्टीम और प्रेस्टीज नहीं देगा। You will always a person without any confidence and without a personality if you are not faithful. An honest and faithful person is a strong personality. आपको वो अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन उसके लिए काम कर रहे हैं क्या? You must work for it. Be faithful to whatever you do, to whatever you say, and make it a धार्मिक commitment. हालांकि आप ये कहते हैं अच्छा लगता है क्योंकि धर्म एग्जिस्ट नहीं करता। In that sense. So any other comment or anything? Students ask something. जी। Sir, like you said कि we not be self-centered. तो अगर हम self-centered थोड़ा तो होना चाहिए, because फिर वो use करते हैं। I'm saying कि अगर हम थोड़ा selfish नहीं होंगे उनके लिए तो उसको हमें use करते हैं। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें सेल्फिश होना चाहिए अपनी बाउंड्री डिफाइन करने के लिए। Listen up. We must define our boundary. वो स्पेस जो है वो फिजिकल स्पेस भी हो, एकेडमिक भी हो, इमोशनल भी हो, मेंटल भी हो, कि इसके पास नहीं आना, ये लक्ष्मण रेखा। उससे हम अगर डिफाइन कर देते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं
तो फिर आप सेल्फिश बिल्कुल ना हो, क्योंकि कोई आपका मिसयूज कब करेगा कि जब उसको एक लिमिट आप पार करने दें। आपको वो लिमिट डिफाइन करनी है वेरी क्लियर, और उससे आगे पीछे किसी को नहीं होना। देन यू कैन बी एवर हेल्पफुल विद एनीबॉडी। और ये मुश्किल नहीं है, आई नो व्हाट यू मीन, आई हैव सीन इट, आई हैव प्रैक्टिस इट, एंड आई वुड से दैट आई हैव एक्सपीरियंस इट इन नंबर ऑफ केसेस ऑफ बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। फूल प्रूफ है, हम चूकते कहाँ हैं कि जब हम अपनी बाउंड्रीज डिफाइन नहीं कर पाते और वो ब्लर हो जाती है। कभी कभी हम ब्लर कर देते हैं इन हीट ऑफ द मोमेंट, वो नहीं करना। अपनी लिमिट्स डिफाइन कीजिए, डिक्लेयर कीजिए, बी फ्रेंडली, बी हेल्पफुल, नथिंग विल हैपन। क्योंकि इसमें एक और बहुत सी चीज़ें हैं जिसको साइंस अभी तक डिफाइन नहीं कर सका, जिसको आप वाइब्स कहते हैं, जिसको आप सिक्स सेंस कहते हैं। ऑल दीज थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू आर वॉट यू थिंक। जो हम सोचते हैं, जैसा काम करते हैं, वही हम होते हैं, एंड दैट इज रिफ्लेक्टेड। पीपल कैन रीड इट वेरी इजी, इट्स नॉट डिफिकल्ट। एनीथिंग एल्स? Okay, then I must thank you all. Sir, जी sir. Sir, you were taking examples of different plans to scale the human life. So would you like to comment on competition also? Because this time students are facing lots of competitions. So how the competition should be? Okay. एक स्लाइड थी, उसकी मैंने डिलीट करी है कल रात को थोड़ा छोटा करने के लिए। स्टिग्मा के ऊपर जब पोलर ग्रेन्स आते हैं, दे ऑल सेंड देयर पोलन ट्यूब्स डाउन। उसमें से एक पोलन ट्यूब तेजी से जाती है, उसमें बहुत से कंपेटिबिलिटी इश्यूज हैं जिसको आप पढ़ेंगे अगर सिलेबस में अब भी है, क्योंकि बहुत कुछ बदल गया। तो वो सक्सेसफुल पोलन ट्यूब अंदर जाके पॉलिनेशन कर देती है, बाकी पोलन ट्यूब्स जो हैं दे सिंपली विथड्रॉ। व्हाट डज इट मीन? जिस फील्ड में आप मैक्सिमम कोशिश कर सकते हैं करिए। इफ यू डोंट गेट योर रिजल्ट्स, इट मीन्स यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स, फॉर सम अदर सिनेरियो। लीव इट। वो उस तरह का कंपटीशन ना हो मार के मर जाने वाला, क्योंकि कंपटीशन फॉर व्हाट? कंपटीशन अगर ईगो के लिए है तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कंपटीशन फॉर एक्सेलेंस के लिए है तो वो पॉजिटिव है, उसमें यू डोंट हार्म एनीबॉडी, उसके लिए कोई नेगेटिव फीलिंग भी नहीं नर्चर हम करते हैं। हम सिर्फ सोचते हैं कि इससे अच्छा करें, क्योंकि हम इससे अच्छा सीखें, इससे अच्छे बने। देयर इज नो हार्म इन इट। पॉजिटिव कंपटीशन इज ए गुड थिंग, इट मस्ट बी देयर, बट इन नेगेटिव कंपटीशन पास भी नहीं जाना चाहिए, बिकॉज इट किल्स एंड हार्म्स नोबडी, योर ओन सेल्फ। ये आपकी पर्सनैलिटी को आपको ख़त्म कर देगा। नेगेटिव कंपटीशन क्या मतलब है? जिसे कट थ्रोट कंपटीशन भी कहते हैं। क्या आप दूसरे को नीचे बाय हुक को पॉलिटिक्स लगा के उसको नीचे खींच लो। तो एक मिसाल कहलाती है ना कि दूसरे की लाइन को छोटा करने से पहले अपनी लाइन को बड़ा कर। अपनी लाइन बड़ी कर लीजिए, दूसरे को छोटी करने की जरूरत ही नहीं, आप खुद बड़े हो जाएंगे। उसमें क्या है कि जो आपका एरिया है, देखिए each one of us must identify कि what is my area of excellence, where I can excel। उस एरिया को फोकस कीजिए, leave the rest। तो पॉजिटिव कंपटीशन तो बहुत ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन उसमें नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। सो पॉजिटिव कंपटीशन इज गुड। इसीलिए वो जो बात नोट्स की आई थी, उसमें जो बच्चे रुकते हैं वो इसलिए रुकते हैं कि ये हमारे जैसे मार्क्स ले आएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये निकम्मा नाकारा हो जाएगा अगर इसको नोट्स दे दिया। उसको सिखाइए, उसको साथ बिठाइए कि देखो हम ऐसे बनाते हैं, ये बुक्स हम यूज़ करते हैं, मत छुपाइए उन बातों को, उन बुक्स को जिनको आप यूज़ करते हैं, लेकिन प्रिपेयर योर ओन नोट्स। अपनी मेहनत खुद कीजिए, जब ही सीखेंगे। दूसरे की दी हुई चीज़ से आप कभी नहीं सीख सकते। देखिए एक बच्चा जो पैदा हुआ है, उसको लाड प्यार में, मोहब्बत में पेरेंट्स हमेशा गोद में रखें, उसको खड़े होकर स्ट्रगल ना करने दें, वो कभी पैर पे नहीं चल सकता, वो अपाहिज हो जाएगा, क्योंकि उसको चांस ही नहीं मिल रहा, वो सीख ही नहीं रहा चलना।
गिरेगा कुछ दफ़ा, चोट भी लगेगी, आपसे भी नोट्स कभी नहीं बनेंगे, कभी टीचर डांटेगा, कभी मार्क्स कम आएंगे, बट दैट्स हाउ यू बिकम परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो परफेक्ट नहीं बन सकते। फिर आप सिर्फ क्रिकेट मोबाइल पे खेल सकते हैं, पिच में नहीं खेल सकते, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे। तो मोबाइल कल्चर वाले समझते हैं हर चीज़ ऐसी बैठे बैठे मिल जाएगी, तो ये गलत। इट किल्स यू, ना पर्सनैलिटी बनेगी, क्योंकि पर्सनैलिटी जो है इनर स्ट्रेंथ से आती है, वो इनर स्ट्रेंथ उस ऑनेस्टी और फेथफुलनेस से आती है जो आपको ज़िंदगी में सीखना पड़ता है। क्वेश्चन ये है, सजेशन ये है सर, जैसे पहला पॉइंट था नो कन्फ्रंटेशन, पर जैसे हम अगर हम जैसे बस में ट्रैवल करते हैं, मेट्रो में, तो हम देखते हैं लोग आपस में बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन कर, मतलब आपस में लड़ रहे होते हैं किसी पॉइंट पे, और तो उनके पॉइंट अपने खुद के नहीं होते, वो कहीं से सुन लेते हैं और उन्हीं को बोल रहे होते हैं, जैसे कि मतलब वो रिसर्च नहीं करते बेसिकली, उन्होंने सोचना बंद कर दिया लोगों ने, ऐसा क्यों? तो जैसे कि अभी पॉइंट चल रहा था महुआ मोहित्रा वाला, कि काली माता ने उसने जो बोला, आई थिंक मेरे हिसाब से सही था, क्योंकि मैंने उस पर पहले मैंने भी न्यूज़ पे देखा, मुझे भी वो सही लगा, पर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी हिंदुइज्म के, तो मैंने देखा कि शैविनिज्म, वैष्णविज्म, शक्तिज्म है। शक्तिज्म वेस्ट बंगाल के अंदर माना जाता है, जिसके अंदर देवियों को पूजा जाता है, और वहाँ पे मच्छी मांस अलाउड है। वहीं जो हमारा शैविनिज्म है उसके अंदर निकाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? मतलब क्या ऐसी साइकोलॉजी है लोगों की, मतलब ऐसे लोग टेररिस्ट बन रहे हैं, ऐसे क्या है साइकोलॉजी में, कैसे? देखिए, आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने रिसर्च करा और आपने कुछ सोचा। देखिए, इसका कारण सिर्फ ये है कि हमने सोचना बंद कर दिया। एंड मैन इज ए थिंकिंग एनिमल। हम सोचते क्यों नहीं हैं? वी आर वेरी ऑक्यूपाइड विद अवर मोबाइल्स। सोचने का टाइम कहाँ है? आप खुद याद कीजिएगा आपने कब सोचा था और क्या सोचा था। बहुत कम। हमें अपने पास बैठने का टाइम कम मिलता है, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ तो दूर की बात हो गई। The mobile has killed civilization. I'm not saying it's killing socialization, it has killed civilization.